So, happy Independence Day, everyone. Before we start today's event, I'd like to introduce our organization, Jago Bharat. Jago Bharat was established to bring in the forefront the issues which are relevant for any developed society or nation but are left out in oblivion. It primarily aims to bring the deplorable condition of our environment, water bodies, waste management, and education in the forefront. We have launched our own products to tackle the problem of waste, like a composter pot, for which we got second prize in innovation exhibition organized by Regional Science and Technology Center, Ghaziabad. We have made recycled notebooks as well. We also promote solutions like rainwater harvesting, which are designed by our own members. We are also active in social awareness through YouTube and by conducting public events. Now I'll introduce you to today's topic for the event. Every year, we celebrate Independence Day with grandeur, fervor, and enthusiasm. This year, too, it will be celebrated in a manner befitting the occasion. However, in view of spread of COVID-19 pandemic, while organizing various programs and activities, it is imperative to follow certain preventive measures like social distancing, wearing of masks, proper sanitization, avoiding large congregations, and protecting vulnerable people. Still, there's this feeling that this Independence Day has a unique message to give, an attached meaning to it. A meaning that is much wider than the freedom to do what we really want to do, freedom of speech and expression, or for that matter, personal liberty. 2020 has taught us how important it is to protect and preserve our nature, greenery, animals, and resources. The things that might have sounded trivial a few years back the things that might have sounded trivial few years back are now really significant in today's time. It's high time that we, as responsible citizens, act upon our duties. Duty to protect the environment from any harm that might degrade its essence. Because at the end of the day, every non living and living being deserves independence and time out from constant exploitation and reckless usage. To wipe away all the negativity that surrounds us during the crisis, it is significant that we devote ourselves to the environment that has helped us to survive and live a life that we really want to. So, I hope we all are aware of what we pledge to do today and what we really aspire of this Independence Day. So, without further ado, I'd like to introduce you all to today's guest speakers. First of all, I'd like to introduce you to Mr. Anoop Khanna. Anoop Khanna is a resident of Noida who has started a venture to provide home cooked food to as many people as possible. He is a renowned social activist who provides people with dal, chawal, achar, roti, and sabzi every day. He caters to more than 500 people daily, all at a meager price of 5 rupees only. The main idea behind this initiative was to provide home cooked food at an affordable rate. He has two stalls, one at Sector 17 and the other at Sector 29 Noida. Our next speaker for today is Mrs. Nandini ji, a lawyer who turned into a organic farmer and natural cure practitioner come guide to connect burdened city people to chemical-free food and retrieve their health, creating community natural farming guilds and food forests so that talented traditional farming practices get the due respect with the powerful handshake of environmentally evolved people and our farmers. The agenda is to do one's bit and leave this earth a little better than what it was. The third speaker for today is Mr. Vikrant Tongar.
Vikrant Tongar is a self-trained environmental conservationist. He started showing inclination towards social work as early as his graduation days. He is working on various issues related to environment, mining, health, and agriculture in northern India and also at national level. He created an environmental organization also called SAFE, that is Social Action for Forest and Environment, in the year 2013, which is working largely with local support without any major financial help. He is also working for the protection of many wetlands like Surajpur, Dadri, Dhanori, Hasapur. He had filed more than 20 litigations for environmental protection, water conservation, and wetland protection in Honorable NGT, that is National Green Tribunal, Honorable Supreme Court, and Honorable High Courts with the support of other nature lovers. He had been a great success in this area. Our last speaker for today is one of our team members, Chirag Batra. Currently a software developer at Optum Global Solutions and an active member of Jago Bharat NGO since 2017. He is a tech enthusiast with an inclination in contributing towards a better tomorrow. Always up to support the community in any kind of unusual conditions, be it COVID or floods, with innovative solutions. His motive is to bridge the gap between humankind's duties and precious gift, which is nature, to establish a sustainable coexistence. So I welcome you all to today's event, and I hope we have a great time learning a lot about what is the true meaning of independence. Thank you, Tanisha. So, the first question that I have is, what difficulty do you have to face while setting up Dadi Ki Rasoi? So, I guess Anup ji, you would probably answer that question. Hello. Hello, am I audible? Yeah. Should I? Yes, sure, sir. नमस्कार जी। 15 अगस्त नमस्कार की सर। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत बिजी शेड्यूल था हम लोगों का, सभी का रहता है 15 अगस्त के दिन, लेकिन जब जागो भारत ने मेरे को अप्रोच करा तो मुझे लगा नहीं, किसी भी तरह से इस प्रोग्राम के लिए कैसे भी थोड़ा बहुत टाइम जरूर निकालना चाहिए हम सभी लोगों को। और मुझे खुशी है कि मैं इतने बढ़िया बढ़िया और सोशल वर्कर भी साथ में हैं, उनके साथ आज मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। स्वतंत्रता के असली मायने क्या होते हैं, ये एक बहुत बड़ा विषय है और इसको अगर हम जितनी डिटेल में जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने जो इसके बारे में शुरू से सोचा है और जो मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूं इसके बारे में, देखिए, सरकारें अपना काम चाह के भी नहीं कर पाती हैं, बहुत सारे रीजंस होंगे, उसकी डिटेल में हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। हम जैसे लोगों को क्यों निकलना पड़ता है, इसके पीछे भी रीजंस ये हैं कि जब हम देखते हैं कि समाज के अंदर ऐसा हो रहा है, और मुझे काफी मौका मिला है, मेरा बेटा जो है विदेश में सेटल्ड है हांगकांग में, तो मुझे वहां जाने आने का काफी मौका मिला है। तो मैंने देखा है कि जब हम लोग वहां से लौटते हैं तो हमें लगता है कि हमारा देश ऐसा क्यों नहीं हो सकता। हर चीज बड़े सिविक सेंस से ले लिए, सब चीज बड़े स्मूथली चलती है, हॉर्न का नामो निशान नहीं होता, पूरे 10-10 दिन निकालते हैं, लेकिन जैसे ही हम दिल्ली एयरपोर्ट पे बाहर निकलते हैं, सारे सामने गाड़ी पे लिखा होता है हॉर्न प्लीज। आई मीन, हम लोग क्यों ऐसा करते हैं, गड्ढे इतने हैं सड़कों पे सब, लेकिन अगर आप सारी बातें सोचते रहेंगे तो वो चीजें नहीं हो पाएंगी। अब आता है सवाल कि हम लोग क्या कर सकते हैं अपने देश को अच्छा करने के लिए। जो मैंने अपना फार्मूला निकाला है, हमें कुछ नहीं करना होता, हमारे दिल में जो आता है, जैसे और बाकी पैनलिस्ट है हमारे, उनके दिल में आया कि हमें ऐसा करना चाहिए, उन्होंने शुरू कर दिया। हमारे दिल में आया कि हमें मेरे पास 3 फील्ड्स थी, मेरा 20-25 साल से यहाँ पर दवाइयों का काम है, तो प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र के माध्यम से जेनरिक मेडिकल स्टोर है, जो कि नोएडा के अंदर मेरा ही था पहला। तो उसमें बहुत सस्ती दवाइयां हैं कि अगर घर में कोई बीपी का मरीज है या शुगर का है, उसकी 10,000 की दवाइयां उसे 2,000 रुपए में अप्रोक्सीमेट किया जाती है। तो ये एक सस्ती दवाइयां देने का हमारा एक कंसेप्ट था, जो कि हमने प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र के माध्यम से पूरा करा। फिर था कि पुराने कपड़े आप लोगों के हमारे होते हैं, मन से उतर जाते हैं और फटते नहीं है, ब्रांडेड होते हैं, वो हम 10 रुपए में आगे देने लगे हम दादी माँ की सद्भावना स्टोर के माध्यम से। और जैसे आपने बताया, दादी की रसोई के माध्यम से हम लोग 500-400 आदमी जितना होता है रोज का खाना उनको प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ में रोटी, रसगुल्ला, पेड़ा, फ्रूट वगैरह वो सारी चीजें अलग से होती हैं।
तो रोटी, कपड़ा और दवाई, ये 3 फील्ड मैंने सोचा कि मुझे करनी चाहिए और मैंने उसमें अपना योगदान देना शुरू करा। अब आप ये देखिए कि इसको देखते देखते शहर में आज 5 साल होने को आ रहा है, 21 अगस्त को हम लोग 5 साल हो जाएंगे हम लोगों को। तो मैं समझता हूं देश के लिए जो छोटा बहुत योगदान मैंने अपना तरफ से करना था, अगर इसी तरह से करना शुरू करें सारे लोग, तो ये देश के लिए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। और आपको सुन के बहुत अच्छा भी लगेगा कि पूरे देश में आज की डेट में 400 से 500 जगह इस तरह के कंसेप्ट चालू हो चुके हैं। कोई हफ्ते में 1 दिन कर रहा है, कोई 2 दिन कर रहा है। तो हमारा मेन एम हो जाता है एक दूसरे को मोटिवेट करना। कोविड के टाइम में क्या हुआ, अप्रोक्सीमेटली ये मार्च के आसपास ये शुरू हुआ था, जो लोगों में अवेयरनेस पैदा होनी शुरू हुई। जो सबसे बड़ी चीज हमारे अंदर निकल के आई इस कोविड के बाद में, जब हम लोग घर में रहना शुरू करा, सब कुछ करा, तो उसके बाद में हमें ये पता लगा कि हमारी जरूरतें वास्तव में है कितनी कम। हम लोग किसके पीछे भागा-भागी कर रहे हैं। पहले अगर आप किसी से बात करते, मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, हम पे 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, हम लोग बोलते थे। आज समय ही समय है। पूरा घर, अगर आपको 400 गज, 500 गज और पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े मकान बनाते थे, कोविड के टाइम में उन सबको पता लगा, ना तो मेट्स को बुलाने के लायक थे, खुद सफाइयां करनी पड़ती थी। तो हमें लगा कि हमारी जरूरतें कितनी कम है। अब अपने जितने रिलेटिव्स वगैरह थे उनसे बात नहीं हो पाती थी, फैमिली में टाइम नहीं दे पाते थे हम लोग, वो टाइम देना शुरू करा। लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये निकल के आ रहा है कि आज हमें पता लग गया कि हमारी जरूरतें उतनी नहीं है जितनी हम लोग सोचते थे, और या हम लोग भागते थे जिनके पीछे। आज कोविड के बाद में बहुत सारी चीजें, अवेयरनेस बहुत अच्छी आई है, सफाई के लिए हम लोग जागरूक हुए हैं। जो चीजें हम लोग सोचा करते थे 10 साल से कि हम लोग कैसे करेंगे, एनवायरमेंट की बात ले लीजिए, कितना पॉल्यूशन होता था, आज ऊपर वाले की दुआ से आप दिल्ली में या कहीं पे भी जाएंगे, पॉल्यूशन का नामो निशान नहीं है। तो ये अवेयरनेस एक तरह से आई है, कोविड के बाद में आई है। हमने कहा है, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं हर जगह जहां मेरे को मौका मिला, हम लोगों ने जीरो से शुरू करा है अब, क्योंकि 4-5 महीने जो हम लोगों को लॉकडाउन में रहे हैं हम लोग, तो अब अगर जीरो से हम चीज कोई शुरू कर रहे हैं तो हम लोग इन चीजों को फॉलो करने के लिए बहुत आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब आप छोटी छोटी सी चीजें देखिए, अगर कहीं गलत होता देखते हैं तो हम लोगों को अपना आगे बढ़ के बोलना चाहिए। जैसे मैंने हमेशा कहा है, मास्क पहन के लड़के आजकल सारे चल रहे हैं, मोटरसाइकिल पे हेलमेट नहीं पहनना है। तो अभी हम समझे हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं समझे हैं। तो मेरा आप लोगों को यही संदेश है कि देश के लिए अगर हम इस स्वतंत्रता दिवस को अच्छी तरह से और एक संदेश देना चाहते हैं, तो हमारा संदेश सिर्फ ये है कि जो अच्छी आदतें हैं उनको हम फॉलो करें। और मैं हर जगह एक बात बोलता हूं, जो मेरे पिताजी ने भी बताई है, मेरी मदर ने भी कहा है, कि हम ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दूसरों को कष्ट हो। एक सिंपल सा फॉर्मूला है आप लोगों के लिए, तो हमारा देश हम लोग इस तरह से सुधर सकते हैं। एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयां मेरी तरफ से 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Sir, there is another question to you. How do you manage to maintain the quality of food at just 5 rupees? ये सवाल लगभग सभी ने पूछा। जब हम लोगों ने दादी की रसोई शुरू करा था, तो हमारा कंसेप्ट ही ये था कि बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना जो गरीब लोग नहीं खा पाते हैं या जरूरतमंद लोग नहीं ले पाते हैं, उनको किस तरह से प्रोवाइड करा जाए। तो हमने, मेरी मदर ने जब मेरे को सजेस्ट करा था इसके लिए, तो हमने ये सोचा था कि चाहे हम 10 आदमी को खिलाएं, लेकिन देसी घी का खाना होगा, बासमती चावल होगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का देंगे। अब आपने जो सवाल करा, अगर आप सच्चे मन से कोई काम करते हैं तो लोग अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। मैंने तो दाल चावल से शुरू करा था 5 साल पहले, इतने लोग भी नहीं थे, ना इतनी पॉपुलरिटी थी, ना इतने लोगों को पता भी था। लेकिन आज की डेट में अगर आप सोच रही हैं, मैं रोटी भी अपनी जेब से दे रहा हूँ, रसगुल्ला, पेड़ा, आप जैसे लोग, बहुत लोग जुड़ रहे हैं। जो कोई रसगुल्ला प्रोवाइड कर रहा है, कोई पेड़े प्रोवाइड कर रहा है। तो आज की डेट में 5 रुपए में बहुत सारी वैरायटी आ गई है। तो अच्छी चीज है, कोई मुश्किल काम नहीं होता है। आप शुरुआत करिए, शुरू में बहुत मुश्किल लगता है। एक्चुअली मैं एक यंगस्टर्स को हमेशा एक चीज कहना चाहूंगा, बड़ा काम हम लोग कर ही नहीं पाते हैं, सोचते हैं हम कैसे करेंगे। छोटा काम हम लोग करते नहीं है, इसलिए हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। आप कहीं से शुरू कर दीजिए, बहुत कुछ होगा। कहीं से भी शुरुआत कर दी है, और अगर सच्चे मन से कर रहे हैं, मैं लिख के देने को तैयार हूं। अगले साल फिर हम लोग यहां मिलेंगे। सच्चे मन से काम करिए, बगैर इसके कि मुझे कितनी पब्लिसिटी मिलेगी, मुझे क्या होगा, कि मेरा नाम छपेगा नहीं छपेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूं, एक बार मेरे पास एक फोन आया, कोटा से आया था, मुझे आज भी याद है। कह लगे अंकल मैं 6 महीने से इस काम को कर रहा हूं। मैंने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हो बच्चे। कह लगे अंकल मेरी वीडियो नहीं बनी अभी तक। मैंने कहा बेटे ये बड़ा मुश्किल काम है, अगर आप वीडियो के लिए कर रहे हैं तो बेटे बिल्कुल मत करो। अगर सच्चे मन से करो, बहुत सारी वीडियो बन जाएंगी। और वीडियो के लिए कभी मत करो, आपका दिल कर रहा है इसलिए करो।
Thank you, sir. थैंक यू So, बेटा. I'd like to ask a question to Mrs. Nandini ji. How has your experience been with organic farming and providing chemical-free food to city people? My experience has been wonderful because आई मस्ट से दैट जिस ज़मीन पे मैं काम कर रही हूँ 4-5 साल से, वो तो विक्रांत भाई जो हैं यहाँ पर पैनलिस्ट, इन्हीं की ज़मीन पे कर रहे हैं, तो रिपोर्ट कार्ड तो मेरी इनके पास है. बट मेरा एक्सपीरियंस तो हैज़ बीन सो वंडरफुल. पर्सनली माय फैमिली हैज़ लेड अ हेल्थ फ्री, मतलब इलनेस फ्री लाइफ इन दीज 5-6 years. एंड बाकी मैंने इतने लोगों को कनेक्ट किया एंड आई वाज एबल टू ब्रिंग सो मेनी, मतलब सिटी पीपल जनरली अगर आप देखें तो बीमार हैं एक तरह से, मतलब उनके शरीर, उनका रख रखाव उससे ही पता चल जाता है, क्योंकि केमिकल्स जो हम खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं दे आर स्टोर्ड इन आवर बॉडीज. तो इस वजह से मैं तो यही कहती हूँ हमेशा दैट हम कमा किस लिए रहे हैं, पेट के लिए आदमी कमाता है, लेकिन अगर वो जहरीली चीज ही अपने अंदर डाल रहा है तो उसको सोचना चाहिए. पीपल हैव टू बी वेरी अवेयर कि हम कर किस लिए रहे हैं जो भी हम कर रहे हैं. तो एक्सपीरियंसेस हैव बीन वेरी पॉजिटिव, इवन दो एज अ लॉयर मैंने मतलब आई हैड अ वेरी हेक्टिक सॉर्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि कोर्टों में और इस टाइप की बंद बंद किताबों में मैंने अपनी ज़िंदगी काटी है, मेरी ट्रेनिंग ही वही है. लेकिन जब मैंने आलू बोया सबसे पहले खेत में, मतलब जो पसीना होता है ना, दैट थिंग ऑफ वर्किंग इन द सन, उससे जो एक सेटिस्फैक्शन होती है कि हमने ये उगाया है, वो हमारा जो जो भी चीज़ हम उगा पाते हैं वो इतना कीमती होता है कि अगर उसको कोई 5 लाख में भी कहे ना कि हम ये सारा आपका खेत ले लेते हैं, इसमें जो भी है, हम देने को तैयार नहीं होंगे शायद, इतना प्रेशस होता है हमारे लिए. सो इस टाइप के एक्सपीरियंसेस हैं मेरे तो. Also, how do you think it has impacted the farmers? एक्चुअली जब हमने स्टार्ट किया था तो तब वहाँ पर केमिकल खेती ही होती थी, जितनी भी होती थी, ज़मीनें ज़्यादातर खाली पड़ी रहती थी. एंड आई यूज टू सी कि हमारे पास ज़मीन है तो काम करने वाला नहीं, काम करने वाले बैठे हैं गाँव में तो उनको कोई रखता नहीं है. एंड यहाँ पर देर आर लैंडलॉर्ड्स हु डू नॉट नो और डू नॉट वांट टू डू एनीथिंग विद देयर लैंड. वहाँ पर क्या होता है कि 1-2 क्रॉप लगा के पूरे साल ज़मीन खाली पड़ी रहती है. तो इन 3 एस्पेक्ट्स को जोड़ना था. एंड एज लक वुड हैव इट, अब आज की तारीख में तो वहाँ ज़मीन मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि इतने सारे लोग ये टैलेंटेड किसान जो हैं, जो कि सब्जी की खेती और ये सब में माहिर हैं, तो वो अब आके ज़मीन ले रहे हैं एंड दे आर सक्सेसफुली रनिंग देयर फार्मिंग. तो मेरा एक ग्रुप सा बना हुआ है और मैं हर फार्म में थोड़ा थोड़ा जाके सबसे मिलना, खाना पीना खाना, ऑल दैट थिंग आई एम डूइंग. तो मैं आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट कि सिटी पीपल भी आके डायरेक्टली किसान से कनेक्ट करके उनसे खरीद के सामान ले रहे हैं. तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल 3 पार्टीज कंसर्न्ड. Ma'am, Yeah. there's a question to you. What basic techniques and knowledge are required for organic farming, and how we people living in city can start organic farming? मैं सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू एंड क्लैरिफाई कि ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है जो हम करते हैं, हम करते हैं नेचुरल फार्मिंग. नेचुरल Okay. फार्मिंग जो होती है वो देसी गाय के प्रोडक्ट से हम करते हैं. ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होता है इसमें काफ़ी चीज़ें, पेटेंटेड मिक्सचर्स कुछ होते हैं, माइक्रोबियल कल्चर्स होते हैं, दोज आर परमिटेड टू बी यूज्ड एज पर लॉ. तो दैट अगर आप इतनी बारीकी में देखें तो ये एक अननेचुरल टाइप की चीज़ होती है, क्योंकि अगर हम कहीं से कोई एग्जॉटिक चीज़ ला के अपने खेत में डाल रहे हैं तो वो लीगली तो पास हो जाता है एज ऑर्गेनिक, हमको सर्टिफिकेशन मिल जाएगी, लेकिन ज़मीन के लिए इन द लॉन्ग टर्म ये हेल्दी नहीं है. तो जिस तरीके की खेती हम करते हैं वो है नेचुरल फार्मिंग सबसे पहले. तो इसके लिए मेरे गुरु तो सुभाष पालेकर जी हैं, पद्मश्री सुभाष पालेकर जी, और उनका मेथड जो है खेती का वो सिंप्लीफाइड है. तो सबसे पहले तो मैं यही सबसे अर्ज करूंगी कि आपके पास जितनी भी जगह हैं, आपके पास एक बैल्कनी तक हो, उसमें भी आपको अपने हाथ का कुछ उगाया हुआ कुछ चीज़ करते रहना चाहिए. मतलब चाहे आपकी मिर्ची क्यों ना हो, पुदीना क्यों ना हो, इससे आप कनेक्ट रहेंगे मिट्टी से. मिट्टी से अगर आपका कनेक्ट है तो आप ढूंढेंगे इस टाइप का प्योर सामान. एंड फिर ये जो किसान हैं जो जैविक नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं वो आपको प्रकट हो जाएंगे, वो आसपास ही हैं आपके,
और वो भी ढूंढ रहे हैं आप जैसे लोग जो उनसे संपर्क में रहें और डायरेक्टली आप उनसे ले सकें, क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग सिटी पीपल नीड टू नाउ कनेक्ट विथ लैंड। मतलब शहर के बाहर लाइक 30-40 किलोमीटर की दूरी पे जमीन तो मिल जाएगी। एंड आजकल जमाना है कोऑपरेटिव फार्मिंग का, तो ये एक मॉडल हमने खेड़ी गांव में शुरू किया हुआ है जो कि ग्रेटर नोएडा में है। तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे होता है। इसमें हम जैसे कि विक्रांत भाई हैं तो इनकी लैंड हमने ली किराए पे, तो इनको भी कोई नुकसान ना हो। एंड उस पे हमारे जो टैलेंटेड किसान भाई हैं जो कि अपने घरों से आते हैं हमारे साथ काम करने के लिए, वो हमारे साथ लगते हैं। एंड फिर हम मिलके, क्योंकि हम सिटी पीपल के पास इतनी तो ना तो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है ना हमारे पास कुछ हमको टेक्निक आती हैं, तो हम सारे लोग प्रोफेशनल लाइफ्स में हैं, तो हम या तो पहले ट्रेनिंग लें एग्रीकल्चर की, क्योंकि हमको स्कूलों में तो ये सिखाया नहीं जाता और ये एक लाइफ स्किल है। आजकल के टाइम में हमको, जो मैंने अपना टॉपिक कवर करना था वो यही है कि आजकल के टाइम में हमको ये समझ आ गया कि हम कितने भी पढ़े लिखे हैं, अगर हम खाना बनाना, खाने को कैसे उगाना है, खैर वो तो बात की बात है, पर हमको रियलाइज हो रहा है। अगर हमको सफाई नहीं करनी आती, हमने सीखा सफाई करना, कपड़े धोने नहीं आते, कपड़े धोने सीखे। यंगस्टर्स को तो खास तौर पे कितनी लाइफ स्किल्स उन्होंने सीखी हैं इस दौरान। एंड हम सेल्फ सफिशिएंट हैं भी, हम कर सकते हैं, पर हमको आदतों से हम मजबूर हैं कि हाँ ठीक है, हम वहाँ मॉल गए, वहां से हम आटा ला रहे हैं आजकल। तो ये तो हद है एक्चुअली। एक हमको सवाल जमीन से, लैंड से, एग्रीकल्चर से, खाने से, इससे कनेक्ट करना है। एंड ये मुश्किल नहीं है। आप हमारे से कांटेक्ट करिए, हमारा किसान स्कूल भी है जिसमें हम शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग भी दे देते हैं। मतलब लोगों को मिट्टी से कनेक्ट करना जरूरी है अगर हेल्थ चाहिए तो, और हेल्थ इज वेल्थ, इट इज लाइक दैट। सो प्लीज एक डू सवाल कम। मेरा था, कैन आई सर आपका? एक सवाल पूछना Yes, चाहूंगा। sure, sir. एक हमारे यहाँ मैं 47 में रहता हूँ, संडे के संडे एक ऑर्गेनिक जी आपका बाजार मार्केट लगता है। लगता है। जी हाँ जी। जी, तो मैं उसमें ये सवाल करना चाह रहा था, इसमें हम पहचान कैसे करें कि ये सब्जी जेन्युइन है या नहीं है, मतलब ये बहुत कि बड़ा लोकल। मुद्दा है सर, हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर हम किसान के साथ कनेक्ट ही ना करें तो हमें कुछ नहीं पता चलता। अब अगर आप मतलब जनरल पब्लिक हैं तो आप अगर वैसे कुछ कोई पहचान क्वेश्चनिंग नहीं हो नहीं सकती। करेंगे, हाँ, नहीं नहीं नहीं, वैसे पहचान कोई नहीं है पहचान नहीं उसका। है। देखिए वैसे क्या पहचान होगी, अब मेरे यहाँ के अगर आप देखेंगे बैंगन वैंगन, वो आपको छोटे टेढ़े मेढ़े ऐसे लगेंगे, तो आप देख के कहेंगे अरे नहीं नहीं ये तो अच्छा नहीं लग रहा देखने में। लेकिन फिर जब मतलब मैं आपका आपको कहना है उसकी सिर्फ विश्वास डिस्क्रिप्शन, पे ही ले सकते हैं हम लोग, सिर्फ विश्वास के ऊपर लेना एक्चुअली पड़ेगा। 100% तो विश्वास ही होता है, क्योंकि आप कभी भी हमारे खेत में आएंगे, हम तो आपको कभी रोकेंगे नहीं कि नहीं आप मत आओ, इस वक्त आओ, वो करो और मिट्टी मत लो। हम तो कहेंगे आप आइए। हमारे यहाँ बहुत सारी टीम्स और ये टीवी या ये सब लोग आते रहते हैं, क्योंकि हमें कोई डर नहीं है। तो इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि एज अ नॉर्मल कॉमन पर्सन, आप अगर पूछेंगे भी तो आपको बुद्धू बनाना बड़ा आसान है, क्योंकि आपको टेक्निक से पता ही नहीं होगा। और बिल्कुल। ऑर्गेनिक के नाम पे तो हर चीज ही साथ में आ जाती है। मेरा कहने का मतलब है खरीदना बहुत आसान है, लेकिन आपको आके सेटिस्फैक्शन तभी होगी जब आप खुद तोड़ेंगे या आप कनेक्ट करेंगे। तो तो आपका कोऑपरेटिव कहना है फार्मिंग कि अगर मेरा हमें मतलब खरीदनी ये है है, तो हम वहीं से डायरेक्ट खेत से लें, वो एक तरह से वो गारंटी बेटर है होगी उसकी। आपके लिए। आपको क्लियर बेटर पता चल जाएगा, ये अभी आपके सामने टूटा है, इसमें अगर यूरिया आएगी। भी है तो इतना है। किसान बिल्कुल, आपको, मतलब उसका दिल साफ होता है, वो आपको उतने में बता साफ बता देगा दें। कि इसमें ये डला हुआ है। ठीक ठीक, आई गॉट तो द आप पॉइंट। हाँ जरूर जी, आइए हमारे यहाँ तो एटलीस्ट। जरूर जरूर जरूर। हाँ जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। Thank you, ma'am. Vikrant sir, I have a question for you. As compared to the older generations, we as the youth, are we going in the right direction when it comes to conservation of nature and wildlife? Sir, sorry, can you repeat? Yes, sure, sir. I Yeah, meant please. that we as young generation, are we going in right direction when it comes to conservation of nature and wildlife? हम्म, बिल्कुल। सबसे पहले सभी को नमस्कार और इंडिपेंडेंस डे की सभी को शुभकामनाएं। और शायद खन्ना सर एग्जिट हो गए हैं, हो सकता है सर नेटवर्क प्रॉब्लम रही हो या उनका कोई काम रहा हो। और नंदनी जी और सभी पैनलिस्ट को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, उन्होंने इसके लिए टाइम निकाला और मुझे भी इनवाइट किया।
और मैं क्वेश्चन पर आने से पहले, क्योंकि मैं थोड़ा क्योंकि जो टॉपिक है उस पर भी थोड़ा फोकस करना चाहूंगा, और उसी में मैं कोशिश करूंगा कि उसी के अंदर इसका रिप्लाई दिया जा सके, जिससे कि टाइम फ्रेम के अंदर मैं अपना कंक्लूड कर सकूं। तो जहां तक कोविड क्राइसिस में ट्रू फ्रीडम की बात है, जैसा अनूप सर ने भी कहा कि फ्रीडम को अगर एक तरह से उसके बारे में डिस्कशन करना हो, ये टॉपिक बहुत वाइड है, लेकिन अच्छा किया आप लोगों ने इस टॉपिक को चुना है, क्योंकि लगातार कोविड क्राइसिस से पहले भी इंडिया में फ्रीडम की बात होती रही है, और सोसाइटी का हर तबका कई बार इस तरह के इश्यूज उठाने की कोशिश करते हैं कि क्या हम रियल में फ्रीडम के कोई मायने हैं इंडिया में अभी। लेकिन देखिए, हमें फ्रीडम को देखना होगा। फ्रीडम जो 15 अगस्त 1947 में हमें मिला था, तो हमें शायद एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उस दौरान, जो मेरा नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, कि हमने सोचा कि अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई तो हमारे लिए ये काफ़ी है। लेकिन हमें यहाँ ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो आज़ादी बहुत लिमिटेड थी, क्योंकि उस दौरान हमारे सामने भुखमरी की भी प्रॉब्लम थी, करप्शन भी कुछ इश्यू था, इसके अलावा तमाम मल्टीपल सोसाइटी से रिलेटेड या गवर्नमेंट से रिलेटेड इश्यूज आए 1947 के आसपास, उसके बाद। तो हमें उनके लिए भी काम करना था। लेकिन हम लोग क्योंकि सभी आज़ादी के बाद थोड़ा एक तरह से एंजॉय का माहौल आया, और हमें लगा कि हमारी जो पहले वाली पीढ़ियां थी उन्हें लगा कि अब हम आज़ाद हैं, लेकिन आज़ादी के साथ साथ जिम्मेदारियां भी हमारे ऊपर आई थी, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज को हम कहीं ना कहीं थोड़ा हमारा उन पर कम ध्यान रहा, जिस वजह से आज हमारे सामने एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, सोसाइटी के लेवल पर बहुत ही भेदभाव का भाव होना, करप्शन के इश्यूज, गुड गवर्नेंस का ना होना, क्योंकि जो जो सिटीजन है उन्होंने अपना रोल कहीं ना कहीं पीछे खींचा, और हम केवल सेल्फ सेंट्रिक तक हो गए। जैसा मोदी जी ने अभी पीछे दावोस में द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये बात रखी थी कि दुनिया के सामने 3 चुनौतियां हैं, टेररिज्म और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, और तीसरा प्रॉब्लम है कि सभी कंट्रीज और ज्यादातर इंडिविजुअल लोग केवल सेल्फ सेंट्रिक हो गए हैं। कंट्री है जैसे यूएस है, या जो भी कंट्री है, चाइना है, पाकिस्तान है, जितने भी कंट्री है, कई बार इंडिया का भी इस तरह का आता है, एक कंट्री को होना भी चाहिए सेल्फ सेंट्रिक। तो अगर हम सेल्फ सेंट्रिक होंगे तो आज़ादी के सही मायने हम लोग प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत डिटेल टॉपिक है। जहां तक कोविड क्राइसिस में आज़ादी की बात है, तो कोविड क्राइसिस में कुछ लोगों को ये महसूस हुआ था कि हमारी आज़ादी कहीं ना कहीं छीनी जा रही है, हमें अंदर लॉक किया जा रहा है, और कोविड के बारे में डिटेल्स नहीं दी जा रही है। देखिए, आज़ादी के मायने तब तक हैं तब तक चीजें नॉर्मल है, अदरवाइज गवर्नमेंट हमारी गार्जियन के तौर पर होती है, और गार्जियन अगर कुछ हमें गाइड कर रहे हैं, अगर कोई वर्ल्ड क्राइसिस है या लोकल क्राइसिस है, हमें उसमें सपोर्ट करना चाहिए। इंडिपेंडेंस का मतलब, फ्रीडम का मतलब केवल फ्रीडम ऑफ स्पीच से नहीं है कि हम सोशल साइट पर कुछ भी बोल सकें, या हम किसी के बारे में कोई भी बयानबाजी कर सके। फ्रीडम अगर आती है तो वो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ ड्यूटीज लेकर आती है कि हमें किस मर्यादा में बोलना है, सोसाइटी के लिए हमें क्या करना है। हम ये जो नेशन है, इसने हमें काफी कुछ दिया है, आजादी से पहले भी, आजादी के बाद भी हमारे देश के सभी नागरिकों को काफी कुछ दिया है। तो मैं इसको कंक्लूड करना चाहूंगा, लेकिन हमें ये तय करना चाहिए डेली, हमें इस बारे में पुनर्विचार करना चाहिए कि हम देश को क्या दे रहे हैं। वो एक मायने है आजादी के, कि आजादी से हम आज देश के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर आप प्री इंडिपेंडेंस जाते हैं तो आप ये तय नहीं कर सकते थे कि हमें देश के लिए क्या करना है, आप तय नहीं कर सकते थे कि किस सड़क पर हमें चलना है, आप तय नहीं कर सकते थे कि ट्रांसपोर्ट का कौन सा मोड हमें अडॉप्ट करना है। सबको गाड़ियां चलाने की आजादी नहीं थी, सबको सब स्थानों पर, जगहों पर जाने की आजादी नहीं थी। लेकिन आज हमें आजादी मिली है, तो हमें इसके महत्व को समझना चाहिए। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच या कुछ भी बोलने भर से इसको सीमित नहीं रखना चाहिए। जहां तक मैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हूँ, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पॉइंट, जैसा नंदिनी जी भी एक तरह से, हम लोग एक टीम का हिस्सा है। नंदिनी जी ऑर्गेनिक फार्मिंग का पूरा चैप्टर एक तरह से देखती हैं, हमें लगातार गाइड करती हैं। ये जो हमारा पूरा डोमेन है फार्मिंग का, उसको पूरी तरह से उन्होंने टेकअप किया है। मतलब हम उनके साथ एक तरह से इस चीज को और ज्यादा सीख रहे हैं, क्योंकि मैं भी फार्मर बैकग्राउंड है मेरा, लेकिन फिर भी मुझे नेचुरल फार्मिंग के बारे में इतनी जानकारियां नहीं थी।
जो नंदिनी जी ने मुझे आकर बताई। और आज अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात करें तो ये पहला ऐसा गांव है एनसीआर का जो पूरी तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग बेस्ड होने जा रहा है। ऐसा मुझे नहीं लगता आसपास कोई गांव है जहां इतने बड़े स्केल पर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग की जा रही है। बेसिकली केमिकल फ्री फार्मिंग है। हमारा फोकस है लेस वाटर यूज करना, जीरो केमिकल यूज करना, और प्रोडक्शन पर हम लोग बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि मिट्टी का ये नेचर है, जितना आप उसकी गौर करेंगे उससे ज्यादा वो देगी। तो ये जो प्रोडक्शन की बात होती है वो कमर्शियल मॉडल है। तो कमर्शियल मॉडल में भी या किसी भी मॉडल में आप जो प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। केवल आपको नेचर के साथ एडजस्ट होना है, उसी से आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और हेल्दी फूड पर हमें फोकस करना है। जहां तक एनवायरमेंट कंजर्वेशन की बात है तो 2010 के आसपास मैंने ये काम शुरू किया, क्योंकि मुझे लगा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जिस तरह से डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रही है उसमें कहीं ना कहीं हमारा एनवायरमेंटल कंसर्न जो है, जो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल डिप्लीट हो रहा है, जो फास्टली रैपिड तरीके से अगर पानी नीचे जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर डिप्लीट होगा, वो एबनॉर्मल है, अननेचुरल है। हम नहीं चाहते कि दिल्ली की तरह, लातूर की तरह, जैसे महाराष्ट्र में आपने सुना होगा, वहां पानी के लिए लोग 3-3 4-4 घंटे पहले खड़े हो जाते हैं और उनके सामने पानी का क्राइसिस है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर में वाटर क्राइसिस ना रहे, इस वजह से ये कैंपेन हमने शुरू किया था। जहां तक यूथ की बात है, क्योंकि 2010 में जब मेरे कॉलेज दिनों में ये बात जब मैंने लोगों के सामने रखी, ऑफिसर्स से मिलना शुरू किया वाटर रिलेटेड इश्यूज पर, इलीगल ट्री कटिंग को रोकने के लिए या प्लांटेशन ड्राइव के लिए हम लोगों से मिलते थे ऑफिसर्स से, तो ये बात सामने आती थी। नंदिनी जी से भी डिस्कशन होते रहे इस बारे में कि इस यंग एज में क्या आवश्यकता है। ये सब तो रिटायरमेंट के बाद किए जाने वाले काम हैं, लेकिन क्या आप देखिए, नेचर हमें क्या रिटायरमेंट का वेट करती है कि जब विक्रांत या कोई यंग रिटायर हो जाएंगे तब नेचर हमें अडॉप्ट करेगी? क्या नेचर वेट करती है इस चीज का? जब नेचर या सॉइल हमें, या हमारे नेशन, या हमारी सोसाइटी हमें इतना कुछ देती है हमारे बर्थ के पहले से, तो हम क्यों वेट करें कि हम 60 प्लस होके सोसाइटी के लिए कुछ कॉस्मेटिक वर्क कर लेंगे बाद में? पूरे साल, पूरी लाइफ एक्सप्लॉयटेशन करें, बाद में टाइम पास के नाम पर हम लोग रिटायरमेंट के बाद कुछ करना चाहे, तो वो आइडिया मुझे कभी पसंद नहीं आया। इसलिए मुझे लगा कि बहुत यंग एज में या अभी इसी समय हमें काम स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि हम बातें कर सकें ड्राइंग रूम में बैठकर या सोशल साइट के ऊपर। आना होगा सॉइल के पास, आना होगा नेचर के बीच, तब जाकर कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। ये अगर कोई यूथ इस तरह सामने आते हैं, कोई सोसाइटी सामने आती है, तो शायद वो ट्रू मायने हो सकते हैं, ट्रू मीनिंग हो सकता है इंडिपेंडेंस का। थैंक यू। आपने बिल्कुल सही कहा विक्रांत भाई कि ट्रू इंडिपेंडेंस इज एक्चुअली ये जो चीजें हमको फ्री में मिल रही हैं, ये धूप है जो जी, ये जो फ्रेश एयर है जो पेड़ों के नीचे हमें मिलती है, ये जो ताज़ा पानी जिसके पीछे आप लगे हुए हैं कि ताज़ा अच्छा पानी जो कि अच्छी क्वालिटी का हो वो हमें मिले, ये सब चीज़ें जो नेचर ने फ्रीली हमको दिया, ये हमारे हेल्थ के ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं, हम में से यूथ तो खास तौर पे अंदर ही घुसे रहते हैं अपने घरों में, अपने इंस्टीट्यूट्स में जब उनको होता है मतलब और हेल्थ का सबसे मेजर जरिया तो यही है। तो आप लोगों को एज यंगस्टर्स ये तो डिसाइड करना ही है कि हो सके तो आप हफ्ते में एक बार तो आइए, बाहर तो आइए जी। और हमारे यहाँ आइए। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो हमारे पास तो बहुत काम है आपसे कराने के लिए। आप पेड़ लगाइए, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो हमारे पास प्लान्स होते हैं उनके साथ जुड़िए। और आप यंग हैं और आपके पास एनर्जी है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं और ये आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो लैंड है ये हमेशा, जैसे विक्रांत भाई ने कहा, ये इंतजार नहीं करती रहेगी। ये लैंड जो है ये बंजर होती जा रही है, आपने पेपर्स में और इधर उधर पढ़ा ही होगा, एट अ वेरी फास्ट पेस। तो जब तक आप अपनी रिटायरमेंट की एज के होंगे तब तो पता नहीं आपको मिलेगा क्या मिलेगा। तो आपको तो चाहिए ही है कि फूड फॉरेस्ट आप खड़े करें। फूड फॉरेस्ट का भी कॉन्सेप्ट होता है हमारे खेती में। Basically, ma'am, there is a question to all of you, that how can children contribute towards social welfare? Well,
See, children are in a situation to copy their parents only and other adults. अगर उनके पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स भी कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज में उनको लेके जाएं और करें कुछ, तो अपने आप ही वेलफेयर होने लग जाएगा. अच्छा, फॉर इंस्टेंस वी कम फ्रॉम वेरी गुड स्कूल्स एंड हम मतलब एक आइसोलेशन टाइप की मेंटालिटी हमारी होती है. हमको पता ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, और स्पेशली हमारे देश में तो तरह तरह की चीज़ें देखने वाली हैं. अनलेस हम अपने आप को आइडेंटिफाई करें विद पीपल, अदर पीपल, उनकी लाइफ्स कैसी हैं. फॉर इंस्टेंस जैसे हमारे किसान हैं, किस तरीके से रहते हैं. मेरे साथ तो बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनको मैं इंटीग्रेट करने की कोशिश करती हूँ, जस्ट टू मतलब फ्रॉम दीज मॉडर्न स्कूल और इस टाइप के बच्चे जो होते हैं, और फिर मिलके खाना खाना, वहीं झोपड़ी में बना हुआ और वहीं पे खाना. इससे क्या होता है कि हमें लगता है कि अगर हम हमें समझ आती है कि अगर हम इस टाइप की लाइफस्टाइल में भी हैं तो ढल सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हमसे होगा ही नहीं, या हम उसके लिए हमको अजीब सा लगे. हमको कंफर्टेबल रहना है हम जहाँ पे भी हों. एंड वेलफेयर इसी तरीके से स्टार्ट होता है विद सेंसिटिविटी. बिल्कुल. तो वही मैं करने भी की यहाँ देर है. ऐड करना चाहूंगा, हाँ, सॉरी मैं इंटरप्ट किया शायद, नहीं बताइए. कि चिल्ड्रंस का जो रोल है वो काफी इम्पोर्टेंट रोल है, वो काफी वाइटल रोल निभा सकते हैं सोशल वेलफेयर में. क्योंकि सोशल वेलफेयर की जब हम बात करते हैं तो सोशल वेलफेयर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि फैमिली लेवल पर चीजें मिसगाइड हुई हैं या हमने चीजों को सीरियसली लेना शुरू नहीं किया. चिल्ड्रंस वो इम्पोर्टेंट रोल निभा सकते हैं फैमिली को इस बारे में एजुकेट करने में कि अगर फैमिली में कोई पानी की वेस्टेज कर रहे हैं उसको रोके. जैसे हम लोगों की प्रैक्टिस है, बोरवेल यूज करते हैं कार वॉशिंग के लिए, फ्लोर वॉशिंग के लिए. तो चिल्ड्रंस काफी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि चिल्ड्रंस की बात को पेरेंट्स को गौर देना होता है. अगर कहीं पेरेंट्स कुछ मिसयूज कर रहे हैं रिसोर्सेज का, सपोज एसी का अननेसेसरी यूज कर रहे हैं, तो चिल्ड्रंस ऐसे में काफी उनको एक बार टोक सकते हैं, क्योंकि चिल्ड्रंस का कोई बुरा नहीं मानेगा. क्योंकि ईगो का बहुत प्रॉब्लम है, नंदिनी जी शायद एग्री करेंगी. अगर हम लोगों को टोकते हैं कि आप बाल्टी से कार वॉश कीजिए, वैसे तो सोसाइटीज में तो अक्सर बाल्टी से होता है, लेकिन आप रूरल इंडिया में देखेंगे तो अक्सर आपको दिखेगा समर से जहां 10,000 लीटर पानी एक बार कार वॉशिंग में यूज होता है. तो अल्टीमेटली चिल्ड्रंस सोशल वेलफेयर में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं अपने पेरेंट्स को गाइड करके, अगर पेरेंट्स की ओर से कोई मिस्टेक हो रही है. दूसरा, स्टूडेंट्स खुद एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू, वाटर कंजर्वेशन के थ्रू, इसके अलावा वो अपने डेली लाइफ स्टाइल में, क्योंकि चिल्ड्रंस भी देखिए जब ब्रश करते हैं कई बार नल चला हुआ होता है, शायद कुछ वैसे तो बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं, अगर हम अपनी एज से कंपेयर करें आज बहुत ज्यादा चेंजेस हैं. तो जैसे ब्रश करते वक्त, टूथपेस्ट करते वक्त वो नल को बंद कर सकते हैं बीच में. और इसके अलावा वो लोग वाटर कंजर्वेशन के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, एक तरह से उनके डेली लाइफ में एनर्जी कंजर्वेशन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है. इसके अलावा उनके जो कपड़े हैं, बच्चों को कई बार शौक होता है कि वो कपड़े बहुत जल्दी जल्दी बदलना चाहते हैं, लेकिन कपड़े के लिए, कपड़े तैयार होने में बहुत ज्यादा वाटर फुटप्रिंट, एनर्जी फुटप्रिंट लगता है. हमें इस बात में गौर करना होगा. हम बोल रहे हैं कि हाइजीन आप मेंटेन करिए, अच्छे कपड़े साफ स्वच्छ पहनिए, लेकिन हमें ये देखना होगा, ये बताना होगा चिल्ड्रंस को कि उससे एनर्जी लॉस, उससे काफी नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर काफी इफेक्ट आता है. अगर हम ज्यादा कपड़े या ज्यादा चीजें खरीदेंगे तो जितनी जरूरत की चीजें उतना ही खरीदे. और एनवायरमेंट कंजर्वेशन सोसाइटी का वेलफेयर है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत बड़ा सेक्शन वर्ल्ड का क्राइसिस में है और आगे क्राइसिस में आ सकता है, खासकर कोस्टल एरियाज में, या खासकर जो आइलैंड्स हैं मालदीव जैसे, ये डूब जाएंगे. हमारे मुंबई जैसे शहर पानी के अंदर समा जाएंगे अगर हमने क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन नहीं किया. तो एनर्जी का कम से कम यूज करें, एसी को हम लिमिट तय करें, 24 से नीचे एसी का टेम्परेचर ना रखें. ये सब बच्चे करेंगे, ये क्योंकि बच्चे इस बात को याद रख सकते हैं, पेरेंट्स को टोक सकते हैं. तो इस तरह से शायद चिल्ड्रंस सोशल वेलफेयर, एनवायरमेंट कंजर्वेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं. एक और टॉपिक था फ्रीडम फ्रॉम क्रूएल्टी. फ्रीडम फ्रॉम क्रूएल्टी, तो वो मैंने अपने टॉपिक्स में लिखा हुआ था कि क्रूएल्टी एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसके जो हम सबके साथ है, क्रूएल्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन.
हमने एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट किया है, हम जानवरों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और अब हमको मात अच्छी तरह से पड़ रही है। एनिमल्स ने अब कोविड के टाइम में जाके सारी ज़मीनों को रिक्लेम किया। कितने सारे वीडियोस आ रहे थे कि हाथी चल रहे हैं देहरादून में और शेर निकले हुए हैं, वो सब। तो ये जो हमने किया है इसको हमने रोकना है। खास तौर पे मतलब जो हम वेजिटेरियंस हैं ज़्यादातर, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको ये भी देखना है कि काउस के साथ क्या होता है आगे, एक्सप्लॉयटेशन कितनी ज़्यादा है। तो उससे हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते और कहीं ना कहीं ये क्रुएल्टी हमको भी, हमारे ऊपर भी असर कर रही है। और ये जो बीफ और ये सब वाली जो इंडस्ट्रीज हैं जो हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन हम भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। सो कहीं ना कहीं ये क्रुएल्टी हमको भी, हमारे ऊपर भी असर करती है। एंड वी एज यंगस्टर्स, हमको इस बारे में भी सोचना है। हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं एनवायरमेंटल, अगर हम कॉन्शियस हैं तो। सो प्लीज। Absolutely. एक्चुअली मेरे There is पास a एक क्वेश्चन question. था मेरे को। Yeah, sure, sure. ओके, सो एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क कि हम लोग एज अ यूथ अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक अवेयरनेस एक बहुत बड़ा इशू है। बिकॉज अगर सब अवेयर हो तो शायद लोग उतना करेंगे नहीं ऐसा एक्सप्लॉइट एनवायरनमेंट को। तो मैम, इफ यू कुड प्लीज सजेस्ट मी अ वे जिससे हम लोग अवेयरनेस इंक्रीज कर सके इस इशू पे। सी, बीइंग वीगन तो आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड हो गया है। एंड बीइंग वीगन मीन्स कि आप एक तो मिनिमलिस्टिक हो जाएं। ये नहीं कि हर दूसरे दिन, जैसे हमको शौक होता है, स्पेशली अगर हम नए नए जॉब्स में हैं तो रोज हम शूज खरीद रहे हैं, बैग्स खरीद रहे हैं। वी हैव टू नो कि ये चीजें कैसे, आई मीन वो एक ज़्यादा लेवल ऑफ अवेयरनेस होती है, देन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। लेकिन वी हैव टू थिंक कि किसी के तो चमड़ा है, अगर हमारा चमड़ा निकल के कोई जूता बना के पहन रहा होता, हमें कैसा लगता है। सो दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस कम्स। इसके लिए देर आर मेनी सच मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स। वो अगर कोई देख ले तो उसके बाद तो उसके होश ठिकाने हो जाते हैं। अर्थलिंग्स करके है, काउस्पिरेसी है। तो द थिंग इज कि अगर हम इस बारे में सोचने लगे, बस सिर्फ एक सोच, तो बस फिर अगर आपको एबेटॉयर कहीं पे दिख गया और आप वहां पे आपने जानवर की चीख सुन ली, आपसे उसके बाद कुछ नहीं खाया जाएगा, कुछ नहीं देखा जाएगा, अब नहीं कर पाएंगे। एंड इस बहाने इफ वी आर मिनिमलिस्ट, ये विक्रांत भाई ने टच अपॉन किया है, हमारी नीड्स इतनी नहीं है, हमारी इतनी नीड नहीं होती जितनी हमारी ग्रीड होती है। हमको ये भी चाहिए, अगर रेड है तो ग्रीन वाला भी चाहिए, ग्रीन है तो वो वाला भी चाहिए। सो अगर हम अपने नीड्स को रैशनलाइज करें कि वाई एम आई गोइंग इन फॉर दिस, मेरे को कपड़ा चाहिए तो मैं सिंथेटिक कम से कम लूँ एटलीस्ट। सिंथेटिक एज यू नो इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ गार्बेज प्रॉब्लम्स। जितना हम सिंथेटिक पहनते हैं, ज़्यादातर हमको सिंथेटिक ही पहनना पड़ता है, क्योंकि इसका स्पेशली फॉर मेन के लिए तो कोई कपड़े होते ही नहीं है ठीक, विच डोंट हैव सिंथेटिक इन दैट। तो सिंथेटिक अगर आप कभी भी जमीन में भी गाड़ के देखें, वो डिसइंटीग्रेट नहीं होना। तो इस तरीके से जो प्लास्टिक है ये हमारे धरती पे एक बोझ बनता जा रहा है। तो अब हम करें क्या? हम तो बहुत ही छोटी सी एक बहुत ही मिनिस्क्यूल लाइफ है ऑन द प्लैनेट, लेकिन इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। आपको कॉटन्स ढूंढने हैं, आपको जूट ढूंढना है, आपको लिनन, ये सब चीजें में बी अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव। आपको सिल्क को छोड़ना है। सिल्क का भी आपने अगर बनता देख लिया या कोई वीडियो देख लिया, आपसे वो नहीं लिया जाएगा। यू नो, अगर आप देखें कि उस कोकून की जान निकाली जाती है और पता नहीं कितने 50,000 कोकून जो होते हैं, स्मॉल एनिमल्स, इंसेक्ट का जो कोकून होता है, इफ यू नो व्हाट इट इज, वो उनको मारा जाता है तब जाके वो सिल्क थ्रेड निकलता है। हम पहन के हमको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैंने तो कितना, आई एम लुकिंग सो प्रिटी, आई एम लुकिंग सो नाइस, लेकिन कितनी जान निकली है टू मेक दैट। इसी तरह से हनी है। तो ये क्रूएल्टी का जो एस्पेक्ट है ये बहुत बढ़ गया है, एक्सप्लॉयटेशन बहुत बढ़ गई है। और इसके कारण हमारे रिवर्स, अगर लेदर इंडस्ट्री का देखें तो मेन पोल्यूटेंट तो ये लेदर इंडस्ट्री है। और अगर हम डेयरी का देखें तो डेयरी के कारण कितनी ग्लोबल वार्मिंग है, एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर अस ऑल्सो। हमारी हेल्थ के लिए डेयरी इज़ वेरी बैड। तो हमको क्या नशा है ये, हमको रैशनलाइज करना है। वी हैव टू थिंक कि हम क्यों करते हैं, हम क्यों खाते हैं, हम छोटे बच्चों को क्यों ये दूध की आदत डालते हैं। इट इज़ नॉट फूड फॉर अस।
स्पेशली आजकल के टाइम में जिसमें इतने इंजेक्शंस और इतना सब कुछ होता है, हम सबको पता है, लेकिन हमने स्टेप्स कब लेने हैं? व्हेन आर वी गोइंग टू टेक द स्टेप? वो स्टेप हम तब लेंगे जब हम किसी बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे एंड वी स्टार्ट गोइंग टू द डॉक्टर्स, टू द हॉस्पिटल्स, तब हम अपना लुक आफ्टर करने लगते हैं हेल्थ को, नहीं तो नहीं करते। आई वांटेड टू से जैसे आप मिनिमलिस्टिक लाइफ लीड करते हैं तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? बिकॉज आज के टाइम पे हर चीज में मिलावट है और मतलब ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स है बहुत कॉमनली यूज्ड है लाइफ में, तो मतलब हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं सारी चीजें? अब आप अगर इस ट्रैक पे आने लग गए तो आपको पता चल जाएगा कि डेयरी के ऑल्टरनेटिव्स भी हैं। अब आप कहेंगे कि क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, मेरे को तो अपना कोल्ड कॉफ़ी पीनी है, मेरे को अपना बनाना शेक है, वो इसके भी ऑल्टरनेटिव्स हैं। यू कैन मेक, इट्स कॉल्ड प्लांट बेस्ड मिल्क। सो काजू का बन जाता है, कोकोनट मिल्क बन जाता है, बादाम के मिल्क्स बन जाते हैं, दे लुक एग्जैक्टली लाइक द मिल्क एंड आपको अपने बस टेस्ट बड्स थोड़े से एडजस्ट करने पड़ते हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट एंड बीइंग मिनिमलिस्ट मीन्स कि आप मिनिमल चीज़ों में मैनेज करें। अगर आपके पास 2 पेन्स हैं तो आप 2 पेन्स में, ये नहीं कि आपको अगर 10 लेके ही रखने हैं बिकॉज आपको रखना है, उसका कोई रीज़न नहीं है। सो यू हैव टू नो, आपने अगर एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं तो वो क्यों हैं, उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। यू आर स्पेंडिंग रिसोर्सेज, चाहे वो आपकी हैं, दे मे बी योर्स, पर आपको पता ही है ये प्लास्टिक पेन्स भी जो हैं ये कहाँ जाते हैं? ओशंस में ही पहुंचते हैं। आपके टूथब्रश हैं ये कहाँ जाते हैं? अगेन दे आर रीचिंग द ओशंस। और हमारा जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग है वो बहुत सैड स्टेट में है, वो कोई रिसाइकलिंग नहीं होती है, व्हाट द नेम। तो हमको लेना भी है। अगर एज सून एज अब आप थोड़े से ओल्डर हो जाएंगे तो आपने दाल और ये सब चीज़ें जो खरीदनी है, अब आप प्लास्टिक पैकिंग में लेंगे तो नेचुरली वो प्लास्टिक जाएगा कहाँ? वो तो लैंडफिल का पहाड़ ही बनने जा रहा है। एंड लैंडफिल्स आप सबको पता है कि इज द कॉज ऑफ सो मच पोल्यूशन, इज द कॉज ऑफ सो मच डिजीज। तो प्रॉब्लम्स बहुत हैं आप लोगों के ऊपर। यू आर द यूथ, वी आर द ओल्डर पीपल, हमने तो आपको गाइड करना है, लेकिन एनर्जी आपके पास है। That's On true. that note, on that note, I'd like to ask Chirag a question. Since Chirag, you are part of the younger generation, what innovative solutions do you suggest to tackle such situations? बेसिकली इसमें सबसे पहली बात तो ये है, मैं विक्रांत सर से भी बहुत बार ऐसी चीज डिस्कस करता रहता हूँ। अगर यूथ को कोई चीज समझानी है तो बिल्कुल उनके स्लैंग में जाके और जहाँ उनको थोड़ा फायदा दिखाया जाए ऐसे समझानी पड़ती है। नहीं तो आजकल की ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। आज हम लोग बात कर रहे हैं, 1 घंटे तक हम बहुत खुश, हम बहुत अवेयर, उसके बाद हम एक मूवी लगाएंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, सब खत्म हो जाता है। तो उसको उस वे में समझाना और उसको परसिस्ट रखना, लोगों की मेमोरी में वो परसिस्टेंस रहनी चाहिए, तो उस बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं। तो इनोवेटिव सॉल्यूशन का सबसे पहला बेसिस यही बनता है हम लोगों के लिए कि हम टारगेट कहाँ करें और किसको करें, कैसे करें, क्योंकि हर जगह पे स्ट्रैटेजी बदल जाएगी हम लोगों के लिए। कॉलेज स्टूडेंट्स से हम अलग तरीके से बात करते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ में हम अलग तरीके से बात करेंगे, तो उस हिसाब से सोचना पड़ता है। Also, considering that the pollution levels that have dropped during the crisis, do you think that this is temporary or permanent? And if this is temporary, what is it there in for our future? Like, is environment going to get better in future, or this will remain same? No, it has to get worse. So let's Sorry, who's answering that? No, ma'am, sure you can no answer. problem, ma'am, no problem. नहीं नहीं, Ma'am, what I am saying is कि Yeah, this you is can go absolutely temporary. अभी तो cars are not on the road and all. So once they are back, तो फिर we are back to square one, and all these industries are going to start spewing their smoke and other things. So the change is very temporary. बिल्कुल, the best example we can take, we can take the examples like जैसे in the first month of the lockdown बहुत सारे tweets इधर उधर से आए थे, like पंजाब से हम लोगों को पहाड़ दिख रहे हैं and all. उसके बाद just as soon the lockdown is over, वो हो गया, again सब everything गया। disappeared, और तब किसी ने पोस्ट नहीं किया कि भाई अब There नहीं will be दिख no more clear skies. रहा है, उसका पोस्ट कर दिया, 5 दिन बाद वो नहीं दिख रहा है। True.
तो ये वही दिक्कत है कि जो है टेम्परेरी इसीलिए है क्योंकि हमारे दिमाग में वो चीज परसिस्ट नहीं कर रही है बिल्कुल। अब जैसे नंदिनी जी ने पॉइंट दिया था कि हम कोई ऐसी स्लॉटरिंग टाइप की मूवी देखेंगे तो हम क्रुएल्टी के अगेंस्ट हो जाएंगे, तो वो इसलिए क्योंकि उसने इम्पैक्ट बहुत ज्यादा मारा है हमारे दिमाग में। मगर बेसिक चीजें जो है उसका इम्पैक्ट हमें उतना बनाना पड़ेगा पहले लोगों के, कि अंदर से उनको आवाज आए कि क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, हर So पॉइंट पे graphic उनको लगे। solutions can be one of them to create an impact on people. I'm not a supporter of gore content, but Okay. it can be for you. So question for all of you today is that just sum up a message that you want to give to the younger generation. बिल्कुल, मैं शुरू करना चाहूँगा, उसके बाद नंदिनी जी अगर अलाउ करें। तो जहाँ तक प्लीज। मैसेज की बात है, तो बतौर स्पीकर मैं मैसेज दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरा मैसेज इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यंगर जनरेशन के जो इंस्पिरेशन है वो एक खास क्लास से आता है। अगर इस बारे में बात करें एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के बारे में, तो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मैसेज की बात है, तो मैं महात्मा गांधी जी की एक बात यहाँ रखना चाहूँगा। उन्होंने एक बार कही थी कि ये जो नेचर है, ये जो रिसोर्सेज है, ये सबकी नीड्स रिक्वायरमेंट को तो पूरा बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। ये बहुत पॉपुलर डायलॉग है, हो सकता है आप लोगों ने सुना हो, लेकिन रिमाइंड करना पड़ता है बार बार। तो बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अगर 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 एक भी व्यक्ति अपनी ग्रीड पूरी करना चाहे नेचुरल रिसोर्सेज से, तो वो पूरी करना, एक व्यक्ति की भी नीड, ये ग्रीड पूरी नहीं कर सकते। नीड अगर और पॉपुलेशन डबल हो जाए तो नीड उनकी भी पूरी कर सकती है ये अर्थ, ये मदर नेचर। तो और अब प्रॉब्लम क्या है, अभी सब ग्रीड पर फोकस कर रहे हैं। एक व्यक्ति की भी ग्रीड पॉसिबल नहीं है पूरी करना, और हम सभी ग्रीड पर फोकस कर रहे हैं, ग्रीड पूरी करना चाह रहे हैं इस रिसोर्सेज के थ्रू, नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू। तो यूथ को इस बारे में सोचना चाहिए, महात्मा गांधी जी के उस डायलॉग या उस बात या उस संदेश के ऊपर गौर करना चाहिए कि हम यहाँ से अपनी नीड या रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, एक्सप्लॉयटेशन की तरफ ना सोचें, और हम ये समझें क्या एक्सप्लॉयटेशन है, क्या बेसिक नीड है। तब जाकर यही मेरा संदेश है यूथ के लिए। और इसके अलावा हम अपने डेली लाइफ में चेंजेस लेके आए, और हम खुद रिस्पॉन्सिबल बने। दूसरों को एहतियात बरतने की बात हम बाद में कहें, पहले हम खुद चीज़ों को सुधारें। और क्या सुधार हो सकता है, ये हम एक्सपर्ट से बात करें या इंटरनेट पर इस बारे में रिसर्च करें, और एक अच्छे सिटीजन बनकर हम देश के काम आए। जैसे अब्दुल कलाम जी कहते थे कि आप ये मत देखिए कि देश ने हमें क्या दिया, फैमिली ने हमें क्या दिया, मेरे फ्रेंड्स ने हमें क्या दिया। आप ये देखिए और ये बताइए, मैंने नेशन को क्या दिया, मैंने फैमिली को क्या दिया, मैंने अपने फ्रेंड्स को क्या दिया। और अगर आज कुछ देना है, मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, अगर आज कुछ देना है तो आप मिनिमाइज कीजिए अपने रिक्वायरमेंट्स। अगर आप देना चाहते हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन कीजिए, ये आइडिया दीजिए लोगों को। आप वाटर फुटप्रिंट को कम कीजिए, अपना वाटर फुटप्रिंट कैलकुलेट कर सकते हैं, आप डेली कितना वाटर फुटप्रिंट ले रहे हैं, और आप उसको मंथली रिड्यूस कीजिए कि हम कितना कम पानी उपयोग करके अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं, हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रख सकते हैं। But let me sum up this thing. I've got a quote from somewhere that you, as youngsters, it is important for you that the knowledge that really matters is how to purify water, how to grow your own food, how to cook, how to build, how to love. And this you are not taught in any institute. So it's high time अब आप तो निकलो and you come. We are waiting for you and आपकी education complete करने के लिए हम वहाँ हैं. Because इसके बिना life is not possible forward. COVID has taught us this. Thank you. Completely. Definitely, ma'am. Absolutely, ma'am. Ma'am, even I wanted to ask, like हम लोग की जो NGO टीम है, हम लोग आपकी फार्म पे डेफिनेटली विजिट करना चाहेंगे once the situation gets over. Please Because आइए. I like the way you lead your life. एंड इवन मुझे भी लगता है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे अभी बहुत जरूरी हो गया है कि हम सब लोग अपने काम खुद से करना शुरू करें। एंड थोड़ा बहुत ही सही, बट हाँ कहीं ना कहीं से शुरू करेंगे तो एक ना एक दिन बहुत बड़ा चेंज क्रिएट कर सकते हैं आज की जनरेशन। एंड इवन अवेयरनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा इसमें। लाइक जैसे मेरे को लगता है चिराग भी बहुत टाइम से हमारे साथ एसोसिएटेड हैं,
एंड उन्होंने काफी मतलब प्लान्स करे वेस्ट मैनेजमेंट में। तो मैं एक बार चिराग को भी पूछना चाहूंगी कि आपने कैसे आइडिया आपको आया वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, एंड आपको मतलब क्या लगा, क्या डायरेक्शन था आपके दिमाग में, ऐसा स्पार्क जो आपको लगा कि करना चाहिए इसमें आगे काम। तो बेसिकली पता है, मेरा ये मानना है कि मोटिवेशन हर जगह है, बस वो एक नज़र चाहिए कि हम उसको किस तरीके से समझते हैं। तो अगर मैं वेस्ट मैनेजमेंट पे आऊँ, तो जैसे विक्रांत सर आपको पता है, हम लोग जो वेस्ट पेपर से कॉपीज सेलेक्ट करते हैं, उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन ये था कि हमारा एनजीओ पहले सोशल वेलफेयर फोकस था, उसके बाद हम एनवायरनमेंट साइड में भी आए, और ये दोनों को साथ में लेके चलने की बात थी, लाइक वेस्ट पेपर रिडक्शन से एनवायरनमेंट के लिए और सोशल वेलफेयर बाय स्किल डेवलपमेंट। जिन लोगों के पास जॉब्स नहीं होती है या जिन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, उन लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट। तो बस हर चीज को एक पजल की तरह जोड़ते हुए चलना है, उस हिसाब से आगे बढ़ना है, वहां से आइडियाज आएंगे। और मैम मैं फार्म की बात करूंगा, एक शायद आपको याद ना हो, काफी टाइम पहले बिल्कुल। एक बार हम लोग उस फार्म पे आए थे, और कुछ ही टाइम के लिए आए थे, ज्यादा अच्छा। देर नहीं रुके थे हम लोग वहाँ, जब हमें एक प्लांटेशन राइट। मूवमेंट करना था। हम तो उससे पहले हम लोग आए थे, और मैं लिटरली अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, अगर कोई भी वहां जाता है तो मतलब एक देख के जो वाइब्स आती है ना, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है वहां पर उस एक्चुअली खेत में पूरे में। तो जिसको भी जाना है जरूर मोस्ट जाएं। बिल्कुल, मोस्ट जरूर वेलकम। अच्छा आइए। रहेगा। लकीली मैं वहीं से लाइव हूँ, आप कभी भी आ सकते हैं। ये फैमिली जैसा माहौल है यहाँ, आपको कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं। जैसे नंदिनी जी ने कहा, हम कुछ जी छुपाते नहीं है, तो इसलिए आप कभी भी आ सकते हैं। हमारे पास कोई केमिकल दिखाई नहीं देगा, आप किसी भी आवर में आ सकते हैं। तो ये लेकिन ओपन खाना फॉर खाना ऑल है। पड़ेगा, हाँ, खाना 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 मिल। पड़ेगा, चूल्हे की Sure. रोटी या खेत हाँ की जी। सब्जी, वो आप हाँ, सिलेक्ट कर सकते हैं, वो चॉइस है आपके पास। बस काम भी अब थोड़ा सा मेरा दे एक देंगे आप क्वेश्चन, लोगों को। नहीं वो तो जी मैंने आप। खा रखा, मैं तो आया हूँ, मैंने तो खाना हाँ, भी तो खा रखा आपको हूँ। खाना खाना पड़ेगा हाँ, जी। बस। मेरा एक मैंने क्वेश्चन मतलब आप दोनों के प्लीज। मेरा एक क्वेश्चन आप दोनों के लिए था, विक्रांत सर, नंदिनी जी। क्या मतलब आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या चेंजेस लाए लॉ में? क्या हमें स्ट्रिक्टर लॉ होने चाहिए, या अवेयरनेस की कमी है? क्या ऐसी कमी है जिससे प्रोग्रेशन इतना नहीं हो पा रहा इन्वायरमेंटल इश्यूज पे? और कोई इशू, एनवायरमेंटल इश्यूज को तो ज्यादातर लोग इश्यूज ही नहीं मानते, इशू तो ही ये नहीं क्या? मानते एक्चुअली। ये सारी प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन की है हमारे देश में। एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस भी पैसे के बेसिस पे मिल जाता है। हम बहुत कैजुअल हैं, हमारा चलता एटीट्यूड जो है उसके कारण हम सफ़र करते हैं। हमारा काम तो चल जाता है, अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो हम, आई मीन इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर एक्सपेंसेस, ये तो हमने देना ही है। बट हम ये नहीं देखते, इतने शॉर्ट टर्म ये गोल्स हो जाते हैं, ये नहीं देखते कि भाई आज से 100 साल बाद, 50 साल बाद क्या असर होने वाला है, मरीन लाइफ का क्या होएगा, रिवर्स में क्या हाल है, वो तो कोई सोचता ही नहीं, बिकॉज हम एक्सप्लॉयटेशन मोड में हैं ज़्यादातर। तो मेरे ख्याल से तो ये है, इम्प्लीमेंटेशन इज़ नॉट गुड थिंग इन इंडिया, इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। विक्रांत विक्रांत सर, हम बिल्कुल। लोग लॉ में ऐसे क्या स्ट्रिक्टर लॉ ला सकते हैं जिससे कि ये ट्रैक में आए? आकाश स्ट्रिक्टर बहुत लॉ के अच्छा। साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जजेस, मतलब जज के सामने जैसे अगर ऐसी कुछ चीज़ आ गई और आपने मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून बना हुआ है, तो वो ही नहीं कन्विक्ट करेंगे उसमें। दोनों बातें बिल्कुल हैं। बिल्कुल, नंदिनी जी ने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया इस पॉइंट को, लेकिन मैं यहाँ कुछ ऐड करना चाहूँगा, अगर नंदिनी जी अलाउ राइट, करें अभी, अगर उनका कन्वर्सेशन प्लीज। कर। सो अगर मैंने उन्हें इंटरप्ट नहीं किया, आई मीन, तो देखिए, जहाँ तक एनवायरमेंटल कंसर्न की बात है, इंडिया में लोग बहुत एनवायरमेंट कॉन्शियस हैं, अगर हम कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो रिसेंट एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, वो ज्यादातर पॉलिसी के वजह से इशू हो रहा है। हमने इसको पॉलिसी में ढाल दिया है, तब से इश्यूज के प्रॉब्लम हुए। आज हमारे फॉरेस्ट लगातार कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने जो सोसाइटी का, जो ट्राइबल्स का रोल था फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में, वो हमने उनसे छीन लिया। आज हमारे जंगल नहीं रहे, और जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, जब तक ये सोसाइटी के हाथ में थे, तब तक ये कंजर्व थे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉलिसी को हटा देना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड चेंज हो रहा है। आज हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो हमें लॉज बनाने होंगे, लेकिन अल्टीमेटली सोसाइटी का रोल इसमें इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सोसाइटी ओरिएंटेड पॉलिसीज बने, लॉज बने, तब चीजें बेहतर हो सकती हैं, और उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो। और हमने एनवायरनमेंट को एक एक
अलग क्लास का सेक्शन बना दिया है। एनवायरमेंट कंजर्वेशन, ट्री प्लांटेशन, ये जितने भी एनवायरमेंट रिलेटेड कैंपेन है ये एक सोसाइटी तक सीमित रह गए हैं, एक अपर क्लास सोसाइटी तक, ऐसा इंप्रेशन है। इन चीजों को हमने आमजन से नहीं जोड़ा है। आमजन से जोड़ना है तो उनसे मोटी मोटी बातें करनी होंगी कि ये नहीं बोल सकते हम उन्हें कि हम एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए आए, तो लोग सर से ऊपर से जाता है। ऐसा नहीं कि लोग समझते नहीं, लेकिन सर के ऊपर से जाता है। जब हम सिंपल बोलेंगे, हम साफ पानी, साफ खाना और साफ हवा की बात कर रहे हैं, हम उसके लिए आपके बीच आए हैं, तब लोग हमसे जुड़ना शुरू होंगे। तब हम उनसे कहेंगे कि हम आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छी हवा देने की बात कर रहे हैं, आपके लिए अच्छी हवा देने की बात कर रहे हैं, तब लोग जुड़ेंगे। हम लोग इतना टेक्निकल डिस्कशन करते हैं, हम इतने लॉ में एक तरह से लॉ वाइज या पॉलिसी वाइज लोगों के सामने चीजें रखते हैं, तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये चीज हमारे लिए की जा रही है या किसके लिए। लोगों को हम कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, जो जंगल लग रहा है ये आपकी बेहतरी के लिए है। लोगों को हम एक तरह से ब्रीफ नहीं कर पा रहे, ना गवर्नमेंट लेवल पे हो पाया है, ना एनजीओ लेवल पर ये हो पाया है। जी सर, मेरे को एक क्वेश्चन था। जैसे मुझे लगता है कि इवन गवर्नमेंट लेवल पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो अभी मतलब वर्क कर रही है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है फंक्शनिंग में। क्योंकि पहले तो होता था कि इंदिरा गांधी के टाइम पे सारे पीएसयूज बने थे, ज्यादा पावर अपने इंडिया के पास थी। पर अभी सभी जगह मतलब वो स्टेक्स कम कर रही है गवर्नमेंट, और मतलब हर जगह ऐसा हो रहा है कि मतलब बाहर अब्रॉड में ज्यादा पावर जाती जा रही है। तो मतलब अगर गवर्नमेंट भी इंडियंस को सपोर्ट नहीं करेगी कंट्री के लिए, और मतलब लोगों तक ज्यादा हेल्प नहीं पहुंचाएगी, तो लोग कैसे स्टेप लेंगे? मतलब लोग खुद की तरफ से करना चाहेंगे, बहुत लोग बोलते हैं कि अवेयरनेस होती है, वो लोग सही डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, जैसे EIA पॉलिसी है, पर उसके लिए इतना तो कर नहीं पा रहे क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है उसमें। तो बिल्कुल। आपके क्या व्यूज? बिल्कुल, ये काफी इम्पोर्टेंट और क्रूशियल इशू आपने यहाँ रेज किया है कि क्या हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पर या लिबरलाइजेशन के नाम पर या मेक इन इंडिया के नाम पर कि इंडिया में बनाइए। अब इंडिया में कोई क्या बनाना चाहेगा? इंडिया में कोई क्या चीजें बनाना चाहेगा? इंडिया में वो चीजें या वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहेंगी ज्यादातर कंट्रीज कि जो उनकी कंट्री में हार्मफुल साबित हो सकता है। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करना चाहेंगे वो लोग, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी कंट्री में वो मैन्युफैक्चर हो। तो इन सब को हमें ध्यान देना चाहिए और हमें अपना डेवलपमेंट का मॉडल जीडीपी को फोकस करके तो करना है, लेकिन हेल्थ, सिटीजन्स की हेल्थ, नेचुरल रिसोर्सेज क्या कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पॉलिसीज या इन्वेस्टमेंट को लेके आना चाहिए जिसमें सबका भला हो सकता है। अगर हम एनवायरमेंटल लॉज को वायलेट करके या एनवायरमेंट को लॉस पहुंचा के जीडीपी को बढ़ा भी लेते हैं, तो कल को एक और इंडेक्स आ जाएगा इन्वेस्टमेंट का कि उन्हीं कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट होगा जहां एयर क्वालिटी इंप्रूव है। अब ये चीज आ चुकी है, बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे कॉर्पोरेट यहाँ ऑफिस बनाने को तैयार नहीं है दिल्ली में, क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन का लेवल हाई है, यहाँ इन्वेस्टमेंट रुक रहा है। तो हमें ये ध्यान देना होगा, अगर हम गुड एयर क्वालिटी देते हैं, गुड वाटर प्रोवाइड करते हैं, गुड फूड प्रोवाइड करते हैं, हेल्दी फूड, गुड नहीं हेल्दी, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अगर हम अपने लॉज को वायलेट करते हैं और जो कंपनी दुनिया में कहीं नहीं चलने दी जा रही है, पॉल्यूशन फैला रही है, उनको हम अपने यहाँ लेके आएंगे, तो उससे हमारा इकोनॉमिक डैमेज भी होगा, हमारे यहाँ लाइवलीहुड की प्रॉब्लम भी आएगी। जहां तक EIA की बात हुई, क्योंकि EIA पे मैं पिछले कई सालों से कोशिश करता हूं कि उसके इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ किया जाए, और EIA इतना बोरिंग टॉपिक आम जन के लिए रहा है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट काफी बोरिंग रहा है, लेकिन हम लोग उसमें डील करते रहे हैं। तो अभी रिसेंटली EIA 2020 ड्राफ्ट प्रपोज किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, जिसमें पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंट क्लियरेंस की बात की गई है। जो एनवायरमेंट क्लियरेंस आपको एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन से पहले लेना चाहिए, वो आप कभी भी ले सकते हैं। आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद में भी ले सकते हैं या 10 साल बाद भी ले सकते हैं। इस तरह के लूप हॉल्स छोड़ना EIA नोटिफिकेशन में या पॉलिसी में, इससे एनवायरमेंटल लॉस बढ़ेंगे, डैमेज बढ़ेगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। LG पॉलीमर्स जैसे एनवायरमेंटल एक्सीडेंट या इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट और बढ़ सकते हैं। तो EIA 2020 ड्राफ्ट जो है, इसको हम लोग ऑलरेडी हाई कोर्ट में रेज कर चुके हैं, और बहुत अच्छा एक नेशनल लेवल कैंपेन इसमें ऑलरेडी चल रहा है। सिटीजन्स आगे आ रहे हैं, यूथ इसमें आगे आ रहा है, सोशल साइट पर इसकी काफी बात हो रही है और लोग बोल रहे हैं कि इसको गवर्नमेंट वापस ले। और अब तक लगभग 20 लाख पब्लिक कमेंट्स इसके अगेंस्ट या इसके बारे में सजेशंस आ चुके हैं। तो अल्टीमेटली जो गौरव
जो जो बात आई अभी मानसी ने जो बात कही, और तो इसमें यही है कि पॉलिसीज हमें नेशन सेंट्रिक होनी चाहिए, सिटीजन सेंट्रिक होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट सेंट्रिक हो, लेकिन दूसरे एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखें। थैंक यू। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा एक, मतलब एंड में जो मुझे लगता है, जैसे कोविड में सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है कि जो मैंने सीखा, वो कोविड ने हम सबको सिखा दी को एग्जिस्टेंस, कि ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बीइंग हम लोगों का राज है, जानवर, प्लांट्स, इटली से लेकर इटली, स्विट्जरलैंड, वहाँ पर भी ऐसे कई सारे डॉल्फिन्स पाई गई जो पहले वहाँ नहीं पाई गई थी। पानी साफ हो गया, मैंने भी खुद यहाँ पर पीकॉक मोर रोड पे चलते हुए देखे। तो ये को एग्जिस्टेंस के लिए बहुत बड़ी सीख है। और एक जो मैं हमेशा हर किसी को बोलता भी हूँ, एक कबीर दास जी का दोहा है, तो वो बहुत सूट करता है हमारे सोसाइटी में, क्योंकि यहाँ ब्लेम गेम बहुत चलता है। जनता लोग ऑफिसर्स के पास जाते हैं, ऑफिसर्स लोग लीडिंग पार्टी होती है उसको ब्लेम डालते हैं कि वो कुछ काम नहीं करते। हम लोग ऑफिसर से बोलते हैं, ऑफिसर लीडिंग पार्टी से बोलते हैं, लीडिंग पार्टी अपोजिशन से बोल देते हैं कि भाई इनकी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे। तो एक कबीरदास जी का दोहा है जो बहुत इसमें फिट बैठता है। वो दोहा ऐसा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। मतलब यही है, दूसरों की बुराई संसार में जब तक आप दूसरों की बुराई देखोगे तो आपको संसार में सिर्फ बुराइयां ही दिखेंगी। अगर उसमें आप अगर कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देखते हो तो सबसे पहले अपने दिल में झांको कि आप में क्या बुराइयां हैं और आपने क्या उसमें बदलाव करे या नहीं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सीख है जो हम लोगों को जरूर अपनी लाइफ में अपनानी चाहिए। आकाश ने बहुत अच्छी लाइंस करके इसको कंक्लूड किया है। बिल्कुल, वेरी नाइस। इवन मेरे को लगता है एक चीज हमें ये भी होना चाहिए कि हम लोग एक्सपेक्टेशन छोड़ दें लोगों से। हम लोग भी इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें एनवायरमेंट रिटर्न में क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, या इवन गवर्नमेंट या आसपास लोग, हमें एक्सपेक्टेशन छोड़ देना चाहिए। हमें अपना सोचना चाहिए कि हम लोग क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे को ये छोड़ देना चाहिए कि आज की यूथ में बहुत ज्यादा है, सबको एक्सपेक्टेशंस लग गई है कि कुछ भी करने को उसको हमें रिजल्ट चाहिए ही होता है। तो हमें ऐसे कर देना चाहिए कि अब सिर्फ हम कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहें मैक्सिमम, हम दूसरों से पाने की इच्छा ना रखें, हम सिर्फ अपनी तरफ से दें, क्योंकि कहा जाता है कि डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। तो आई थिंक वी शुड गो बाय दिस थिंग एंड वी शुड फॉलो द रूल्स फॉर एनवायरनमेंट व्हिच इज बेस्ट फॉर अस। भाई तनिषा, आप कुछ अपना व्यू रखेंगे? Even I think the same कि being a part of the young generation, अभी हम ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, but it's the right time to start. And in fact, ma'am, we'll love to visit your farm and we'll help you with all we can. And even अपने खुद के personal level पे we'll definitely try and conserve as much as possible. Water हो चाहे और कोई resources हो, which are already in scarcity, और हम पूरा अपना try करेंगे that is the best. नहीं, दैट इज़ वेरी गुड एंड यू विल बी इंस्पायरिंग सो मेनी मोर, क्योंकि यू सी ये सब आइडियाज़ स्टार्ट कहीं ना कहीं तो होने ही हैं। एंड आपने अभी लैंड के साथ आप जुड़े तो श्योरली यू विल इंश्योर समथिंग वेरी बिग इन योर लाइफ, क्योंकि यू विल नेवर गो रॉन्ग। जब हम एक होता है कि ग्राउंडिंग जिसे कहते हैं, व्हाट इज़ ग्राउंडिंग? ग्राउंडिंग वो होता है जो ज़मीन पे चलता है, उड़ता नहीं है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। इफ़ यू आर वेल ग्राउंडेड you will see reality the way it is, and that is like a lesson to you in life. Definitely, ma'am. And because ये balance हमको करना ही है। We have to balance development, like in all this conversation like we were having. तो उसमें हमको यही देखना है कि हम चाहते क्या हैं। अगर हमारे जंगल कट रहे हैं, हमको डैम्स चाहिए, डैम्स में पानी भरा जाता है, उससे वैसे ही ऑफ कोर्स वी गेट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी वी कैन जनरेट थ्रू सोलर एंड सो मेनी अदर वेज। एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू कट द यूज ऑफ दीज बिल्डिंग मटेरियल्स ऑल्सो। जब आप आएंगे फार्म पे तो देन आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन अ फ्यू मोर थिंग्स टू यू कि ये जो आर्टिफिशियल लैंड तरीके से हम रहते हैं, इट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर अस, फॉर आवर ओन हेल्थ एज वेल एज द हेल्थ ऑफ द अर्थ। तो कंक्रीट जंगल अगर बना रहेगा तो हम सबकी हेल्थ को असर कर रहा है। नंदिनी जी, इसके ऊपर मेरा एक फ्यूचर, हाँ कहिए।
एक क्वेश्चन था, मतलब मैं भी और मेरे कोई फ्रेंड भी बहुत जानना चाह रहे थे, क्योंकि मुझे पता है आपके मतलब घर में प्लास्टिक बैन है, हर चीज, कोई भी केमिकल से रिलेटेड तो कोई चीज मिलेगी नहीं आपके घर में। हाँ, तो मतलब नॉन ऐसा केमिकल लिविंग है। अगर कोई जैसे कोई भी एक आम आदमी अगर ऐसी लाइफस्टाइल जीना चाहता है, तो उसके लिए क्या मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट कितने लगते हैं, या फिर इट्स नॉर्मल डू? एक्स्ट्रा एफर्ट इतना ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि जैसे कि आपको तो पता ही है कि गार्बेज एंजाइम होता है, वो एक क्लीनिंग एजेंट हो जाता है, तो वो हम अपने घर में जैसे ऑटोमेटिकली बनाते रहते हैं फलों के छिलकों से और इससे फलों के उससे। छिलके से। So, क्या होता है, पानी का जो पोल्यूशन है वो एट अ हाउस होल्ड लेवल ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो पानी जो कि हम फिर कपड़े धोने में, वॉशिंग मशीन में और पोंछे में यूज़ करते हैं, वो सीधा गार्डन में चला जाता है, प्लांट्स में चला जाता है। सो इस तरीके से जो पानी हमने यूज़ किया, विच शुड गो बैक टू द अर्थ जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये नहीं कि सीवेज के थ्रू ये जाए यमुना में, वहाँ की पोल्यूशन बढ़ाने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम कर सकते हैं ये, इट बिकम्स सो ऑटोमेटिक। आपने साबुन नहीं यूज़ करना, साबुन के ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जो कि हर्ब्स होती हैं, वो पानी भी फिर आपका बाहर जाता है। तो अगर फिर हम फाइनली जब हम इस टाइप के लाइफस्टाइल में ढल जाते हैं, तो फिर हम एक फूड फॉरेस्ट क्रिएट करके, और आजकल ऐसी बड़ी कम्युनिटीज़ इंडिया में भी बन गई हैं, तो फूड फॉरेस्ट क्रिएट करके उसमें फिर मड हाउसेस होते हैं, उसमें रहते हैं, एंड फिर जो भी हमने सीखा है उसको फिर हम अपने स्किल्स वहाँ पे यूटिलाइज कर पाते हैं। क्योंकि इस कोविड ने ये तो सिखा दिया ना कि जो हमने अपनी लाइफ में अभी तक करा है वो कितना यूज़फुल था हमारे लिए। वी नो दैट। अब कोई अगर इकोनॉमिस्ट है तो उसने क्या किया, जब सारा कुछ बंद ही हो गया, जब इकोनॉमी ज़ीरो चल रही है, तो उनके आई मीन डिग्री का क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट। तो अब हमने टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन करना है। हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है ये देखिए, खाना सबसे ज़रूरी है ना, खाने के बिना तो वी कैन नॉट एग्जिस्ट। रह नहीं सकते। खाना भी वो हो जो कि 100% क्लीन हो। वो क्लीन तो तभी होगा इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड सम टाइम इन इट। अब तो विक्रांत भाई इज ऑल्सो ग्रोइंग हिज ओन फूड। सो इस तरीके से हम सब, अगर मतलब यू मे बी इन प्रोफेशनल लाइफ्स, लेकिन हमारे कॉर्पोरेट जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है, इसमें वंस अ वीक आपको देना है बस, खेती के लिए। इतना तो कर ही सकते हैं ना, कितने भी बिजी हो जाएं। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल चेंजेस वी कैन ब्रिंग इन आवर लाइफ। हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमको बस करने की शुरुआत की देर है, एक स्टेप लेने की बस। मैंने भी इसी तरह स्टार्ट किया था, मैंने भी तो एक स्टेप लिया था ना, और तब मुझे पता चल गया कि दैट इज़ व्हाट वाज मेंट फॉर मी। किताबों के अंदर घुसने का मेरा नहीं रह गया था कुछ भी, और बस मेरे साथ के सारे लोग या तो हॉस्पिटल्स में चढ़ावा कर रहे हैं, नहीं तो करने वाले हैं। तो मतलब जो भी उनकी अर्निंग्स हैं और बैंक्स में पड़े हुए हैं इन्वेस्टमेंट्स, या फिर इंश्योरेंस में है, वो तो आपको पता ही है किस तरीके से जाएगा। तो हमको एट सम स्टेज यू मे थिंक अरे हमको कुछ नहीं हो रहा, बिकॉज ये हमको फीलिंग होती है अरे आई एम वेरी हेल्थी, मेरे को कुछ नहीं हो रहा। लेकिन आसपास देखो आप, क्या नहीं हो रहा, लोगों को कैंसर्स कितने हो रहे हैं। सो वी हैव टू सी कि अल्टीमेटली हमने कहाँ जाना है। हॉस्पिटल जाना है क्या, कहाँ जाना है? इतने पोल्यूशन में, इतने केमिकल्स में, तो वही है आपके पास जगह। हमारे पास दो चॉइस है, तो फार्म में जाइए या फिर हॉस्पिटलाइज होइए, तो कौन सा हाँ, बेटर है? और जो कमाया है वो भी चढ़ावा वहीं पे चढ़ा दीजिए। पाइपें लगी हुई होंगी हर जगह, डराना जरूरी है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी देखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिशियल है, हमें वही ऑप्ट करना चाहिए अब आगे के लिए। शॉर्ट टर्म तो लॉन्ग बहुत टर्म चीजें में अच्छी तो भाई आप अर्थलिंग्स हैं, यू हैव बीन बॉर्न ऑन द अर्थ। आपके साथ फैमिली में नेचुरली भाई बहन तो होंगे, लेकिन और भी अर्थलिंग्स हैं जो आपके साथ रहना चाहते हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन यू ऑल्सो, विच इंक्लूड्स एनिमल्स, विच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, बीज। तो जब आप नेचर के साथ जुड़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली यू हैव द बेस्ट ऑफ लाइफ। पेड़ों के नीचे बैठ के आप करिए अपनी स्टडी, देखिए आपको कितना आप ब्राइट फील करते हैं, कितने नेचुरल विटामिन्स आपको पेड़ देते हैं। क्योंकि पेड़ का जो वॉट एवर इट इज़ थ्रोइंग आउट इज़ फूड फॉर यू, इट्स ऑक्सीजन, वाइटल
फ्रेश एयर फॉर यू, और जो आप छोड़ रहे हैं वो उसको ज़रूरत है उसकी। तो ये इंटरडिपेंडेंस जो है इसको हमने रिस्पेक्ट करना है। तो जो पेड़ कट गए तो पेड़ हमको किसी तरह रिप्लेनिश तो करने ही है, एंड रिप्लेनिश करते करते हमने फलों के पेड़ लगाने, क्योंकि हमारा डाइट तो फलों का होना चाहिए मैक्सिमम, क्योंकि वी आर क्लोजेस्ट टू मंकीज, वी आर नॉट क्लोज टू इन बायोलॉजी के। अगर आप थोड़े से भी स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्लोज टू शेर या कोई और कार्निवोरस के तो क्लोज नहीं है, बंदर ही हैं जो हम सबसे क्लोजेस्ट हैं। उसकी तरह का हमारा दिमाग होना चाहिए, उछल कूद ये सब, उतनी एनर्जी होनी चाहिए। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर कुछ काम तो करना है ना ज़रूरी, वी हैव टू वर्क ऑन इट। सही। इवन पॉजिटिव वाइब से मिलती है मैम। अगर हम लोग आउटसाइड एनवायरनमेंट में रहते हैं तो ज्यादा पॉजिटिविटी भी आती है और अच्छी फीलिंग भी आती है कि हमें अच्छा फील होता है खुद के बारे में। वही तो ये बात है, तो ये सबने जो हाँ सब नोट करते हैं कि आर्टिफिशियल लाइट जो है उससे हमको, भाई क्लास में बैठे होते तो नींद नहीं आती रहती, बहुत आती है ना। और वो ज़माना होता था जब गुरुकुल होते थे तो पेड़ों के नीचे बैठ के तब लिखने का भी कुछ नहीं होता था, सब याद करते थे। सो दैट मेमोरी, दैट ब्रेन पावर वाज सो सुपीरियर। अब हम एकदम फुस हैं। सो हमको आउटडोर्स निकलना ही है, ये बॉटम लाइन है। चिराग, कोई लास्ट थॉट? काफी कुछ यहाँ पे कवर हो ही गया, बट बिल्कुल हाँ इस टाइम बात को पे ध्यान में रखते हुए। टाइम को ध्यान में रखते हुए तो मैं यही बोलूंगा कि बिल्कुल अब नहीं, एक आपके फैसला लिए तो नहीं हर बोल किसी रहा को मैंने, करना है। आपके लिए टाइम कंस्ट्रेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब ओवरऑल। हाँ टाइम कंस्ट्रेंट तो आपके लिए नहीं, क्योंकि आपने सबसे कम टाइम लिया, तो आपके लिए तो फ्रीडम है अभी। नहीं नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ मैं इस बात पे पूरा एग्री करूंगा कि एक डिसीजन तो इस टाइम पे आदमी को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जी अगर हम लोग क्या है ना, हम लोग कुछ सोचने से दूर भागते हैं। कि अगर आज आप किसी भी नॉर्मल आदमी को बोलो कि भाई तू यहाँ बैठ और सोच 50 साल बाद अर्थ के नेचर के साथ क्या होगा, वो इतना घबराएगा कि वो सोचेगा ही नहीं, वो स्किप कर जाएगा, अपने आप को कोई भी झूठी कहानी बता देगा, वो सोचने ही नहीं चाहता आगे। पर जब हम सोचेंगे तब हमको ये डिसीजन लेना पड़ेगा, जैसे नंदिनी मैम ने बोला कि हम हॉस्पिटल जाएं या फार्म में जाएं, वो एक डिसीजन अंदर से लेना ही पड़ेगा। इस टाइम पे नीड ऑफ आ रही है बिल्कुल। और ऊपर से जैसे कि हम लोग खुद अपने एनजीओ में बोलते हैं, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट में हमारी टैगलाइन है, मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी। मतलब कचरा अगर मैं पैदा कर रहा हूँ तो उसका पूरा डिस्पोजल मेरी जिम्मेदारी है। उसके लिए मैं किसी गवर्नमेंट को कुछ नहीं कहूँ, किसी को कुछ नहीं कह सकता, मैं अपने घर में भी कर लूँ अगर, तो बहुत है। वो चीजें करनी पड़ेंगी इसको। Absolutely. I think we've shared a lot of thoughts and messages throughout the session, and it was quite informative and knowledgeable. Thank you so much, ma'am and sir, for joining us today. And it थैंक was यू। great having you share so many memories of you starting your own experience and how it developed into such a good initiative. So thank you. And I would also like to थैंक thank यू सो all the मच। viewers for patiently watching us and listening to all this valuable information. So with these thoughts, I'd like to end the session and the event for today. And happy Independence Day to all of you. सेम I टू hope यू we एवरीबॉडी। Happy really Independence did understand the true meaning of independence during COVID. And I hope we do continue this thought in our minds and with our actions. Thank you. आई होप सो। थैंक यू। गुड लक। Thank you, थैंक Rana. यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। नमस्ते जी।